A film made on the life of Bollywood actor Sanjay Dutt, Sanju, is considered as one of the most anticipated films of the year considering its power-packed storyline and star cast. Ranbir Kapoor has miraculously transformed himself into Sanjay Dutt, and hence the excitement for the film is soaring high. The film's trailer got released and needless to say, it will sure make the excitement of the fans go a notch higher. Present for the trailer launch of the film were the team's star cast including Ranbir Kapoor, Sonam Kapoor, Diya Mirza, Paresh Rawal, Manisha Koirala, Vicky Kaushal, along with producer of the film Vidhu Vinod Chopra and director-producer Rajkumar Hirani. Anushka Sharma, who is said to be playing Sanju's lawyer in the film, was missing from the trailer launch since she's in the US shooting for Zero with Shah Rukh Khan. Sanju is slated for its release on the 29th of June and we sure can't wait for the day to dawn. As filmmakers हम सब greedy होते हैं कि ऐसा कोई कंटेंट मिले जो बहुत इंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो, लोगों को हंसाए रुलाए. सो जब संजू से मैंने उनकी कहानी सुनी तो एक कहानी तो जो है जो आप सबको पता है, काफ़ी प्रेस में उनके बारे में काफ़ी लिखा जा चुका है, सब एक कहानी जानते हैं. पर मैंने जो एक कहानी सुनी जिसमें एक फादर सन की स्टोरी थी और एक दोस्ती की कहानी थी. सो इसेंशियली ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं कहीं पढ़े होंगे. सो आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बाप बेटे की कहानी और एक दोस्ती की कहानी है और हमने पूरी ईमानदारी से कही है, यानी जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है. सो फॉर मी इट वाज ग्रेट टू गेट अ ग्रेट स्टोरी. जब मैं छोटा था मेरे कबर्ड के वॉल पे संजू सर का पोस्टर था एंड नाउ टुडे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू आई एम इन हिज शूज लुकिंग एट यू एट ट्राइंग टू रिप्रेजेंट हिम एंड आई थिंक in my life I really want Sanju sir to like me. I know I can never be the man he is, I can never be the person he is, but in every which way that I go about in my career as a person, even through this film, I really want Sanju sir to like me because I feel that he's a man that I respect a lot. I really look up to him and I really hope that he feels that I have represented his life in a very honest and true way. मुझे अभी भी याद है क्योंकि हमारे घर पे अभी भी एक तस्वीर है जहाँ पापा बिफोर बिकमिंग एन एक्शन डायरेक्टर एज अ स्टंटमैन संजू सर के बॉडी डबल थे इन वन ऑफ हिज फिल्म्स. सो अभी भी मेरे पास एक तस्वीर है जहाँ उन्होंने सेम कॉस्ट्यूम पहना हुआ है एंड बिटवीन शॉट्स मट्टी में है और सब कुछ. वो तस्वीर मुझे अभी भी याद है. सो फॉर नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स मुझे उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा प्ले करने का जो मौका मिला है, इट फील्स ट्रूली स्पेशल. आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला. सो थैंक यू राजू सर, थैंक यू विनोद सर. I just wanted to work with Raju sir, so I said yes to the film. It was as easy as that, and I wanted to be a part of Vinod uncle's any films that he makes, and so anything. Sorry. स्टेज पे अच्छा खाते शेव करके आए, इतना गुड लुकिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए यार. I just wanted to be a part. I've wanted to be a part of his production, and whatever films he's going to offer to me, I'll always say yes. So, so for the next 1 year, I'll be standing on stage with them only. So I'm very happy to be here, and I'm very happy to work with Ranbir after 10 years. Baba that I know is all heart, and मैंने 3-4 फिल्में की उनके साथ. He's always been like a prankster, happy, all heart kind of a person. And I'm really looking forward to seeing this film because there's many aspects of his life that I don't know, I didn't know. So I'm keen to watch this movie. मैं संजू सर कहती हूँ उन्हें. उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं और हमेशा मेरा एहसास उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए यही रहा है कि ही इज़ बिन एक्सट्रीमली वार्म, अफेक्शनेट, काइंड, जेनरस. एंड जब मैंने ये फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो इट जस्ट ब्लू माई माइंड. आई कुडंट बिलीव हाउ लेयर्ड एंड हाउ डिटेल्ड दिस नैरेटिव वाज, एंड इट रिवील्ड. आप जब इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं तो यू हियर थिंग्स अबाउट पीपल, but when I heard the script, I heard things that I had never heard before, and that was just remarkable about it. And I felt like for some reason I feel closer to him now than I ever did before, and I feel more connected with him than ever before. देखिए, मैंने संजू के साथ 2 मुन्ना भाई फिल्में की थी, पीके में भी उन्होंने एक रोल किया था. तो मुझे लगता था मैं संजू को जानता हूँ, पर
जब संजू परोल से बाहर आए थे कुछ वक्त के लिए, तो मैं उनसे मिलने गया और तब मुझे पता लगा कि जो मैं संजू के बारे में जानता था वो उतना ही है जितनी दुनिया जानती थी. आई वॉज नेवर वेरी क्लोज टू हिम कि हम बैठ के कुछ रात को पार्टियां कर रहे हो. ही वॉज वर्किंग विथ मी और मैं उतना ही जानता था. तो जब वो परोल पे आए तो उन्होंने आई थिंक वॉज जस्ट वेंटिंग आउट, ऐसे खुल के बताना शुरू किया कि जेल में कैसे वक्त बीतता है. सो आई गॉट वेरी फैसिनेटेड विद इट. फिर उन्होंने अगले दिन फोन कहा कि क्या कर रहे हो, आ जाओ. फिर मैं अगले दिन गया. फिर उन्होंने, मुझे लगा पहली बार खुल के वो ऐसे बात करना चाहते थे. उन्होंने जब बताना शुरू किया तब मैंने अभिजात को फ़ोन किया तीसरे दिन, और वो अहमदाबाद में था. मैंने कहा अभिजात आ जाओ, यहाँ मैं जो सुन रहा हूँ वो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है. तो उसके बाद हम लोग 25 दिन रोज़ शाम को 5 बजे जाते थे, उसके घर पे 3 बजे तक बैठते थे और सुनते थे. वो रिकॉर्ड भी किया हम लोगों ने. तब मुझे लगा कि एक्चुअली उनके घर से जब निकलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हमने जिंदगी जी नहीं है. वी फेल्ट लाइक ड्वार्फ्स कि ये क्या जिंदगी है. I think subconsciously every character you play, and that's why you choose them. You want to imbibe certain qualities from them. And I think Sanju sir's life is such that we all can learn something from his mistakes. That's why he's given it so gracefully. Ke, these are the mistakes I made, you know. And so I think his mistakes is something that, you know, I can really understand and I can learn from.